whenever we are having concentration, so we can use this formula that says number of moles is equals to concentration times volume. That would be used to calculate moles if needed. मैंने अभी क्वेश्चन में सिर्फ ये फॉर्मूला इसलिए लिख दिया ताकि आप इसे यूज करने के लिए तैयार हो जाएं. यूजुअली हमें ये यूज करना पड़ता है. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स वॉल्यूम. सो कॉन्सेंट्रेशन इज एनीथिंग given in per liter or anything given in per liter grams or moles. So that is was the first piece of information. Then the second piece of information is sodium hydroxide is added slowly from a burette to sulfuric acid in the beaker. Okay. So a pH probe is used to measure the pH until total volume of 40 cubic centimeters of NaOH is added. So they started up with basically 0 cubic centimeter, and then they're adding to 40 cubic centimeter NaOH. So what they are giving you through this information is volume of NaOH. ये बताएं, ये बात समझ में आती है? That is 40 cubic centimeter. Then question asks us, you can have this pH figure, so that's the volume of NaOH added. It started here, it became a curve like this, then it was a straight line, then it became a curve like this, and then we have pH values. Okay, nice. That. So first question जो usually बच्चे इसमें पूछते हैं वो ये पूछते हैं, सर what do we mean by pH? तो उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. pH basically is an indicator or a scale to show how strong your acid is, or how weak your acid is, or how strong your base is, or how weak your base is. So if we remember, pH was 7 for water, and 7 onwards, it represents a base that may be 8, 9, 10 to 14. 14 is the most stronger base, and from 7 to 0, it represents an acid, and acid is a very strong acid at 0. Okay, so you can see according to this figure, it goes on from 0, that should be 1 around, and then here, if we plot a line here, just for our understanding, this is the 9, that ends at 3, right? So starting at 3 till 11, this is exactly a straight line. Okay, ये बिल्कुल straight line है. From 3 to 11. Now what does that has to mean? इसका क्या मतलब है? That is a very important part and very important question. इसका क्या मतलब? So देखो, इस जब भी straight line पे हम जाएंगे ना यहाँ से यहाँ, तो इसमें अगर pH बिल्कुल vertically change नहीं हुए, so this represents the end point, the neutral solution. Okay? यानी कि जो भी चीज ऐड कर रहे थे हम, अब वो जिस कंटेनर में है उसकी pH बेसिकली अब 3 to 7 या 3 to 11 के बीच में है, तो वो एंड पॉइंट के आसपास है. ठीक है, बिल्कुल एंड पॉइंट है. यानी कि इनिशियली solution was slightly acidic. ठीक है, then here it turned basic. तो 3 to 11 के बीच में कहीं वो एंड हुआ है, जिसके बीच में इंडिकेटर ने अपना कलर चेंज किया होगा. डू यू गाइस गेट दिस? इज दिस अंडरस्टूड? अब अगर वो फेनोक्सिलीन यूज कर रहा था तो वो एसिड में कलरलेस होता है, पिंक हो गया होगा हल्का सा. अगर वो मीथाइल ऑरेंज यूज कर रहा होगा तो वो कलरलेस हो गया होगा. अगर वो नैप्थलीन यूज कर रहा था तो उसका कलर जो है वो रेडिश पिंक हो गया होगा. डिफरेंट हो सकता है, कोई भी इंडिकेटर हो सकता है. आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये सेंस होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है. इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीवन? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? Okay. So coming to the question, it says explain in terms of the ions present why the pH of the solution in the beaker changes from 1 to 13. For 2 marks, they want us to write why pH changes from 1 to 13. तो pH चेंज होना चाहिए. एसेंशियली क्यों चेंज होना चाहिए? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास कंटेनर में था एंड यू आर एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो pH 1 was something relevant to acid, and then till 13 it should be a base. So we can say initially solution was acidic. That means
more H positive ions, then it was neutralized by adding सोडियम हाइड्रोक्साइड. एक मिनट बेटा अजान के लिए. Okay, so then it was neutralized by adding NaOH. So the pH then turned basic. Is this understood? Okay. Then in the second part, what it asks us is, let's bring that here. Yeah. It says use the graph to state the volume of NaOH that just neutralizes all of pH. तो हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH ऐड किया है. ऑन एक्स एक्सिस वी कैन सी कि NaOH ऐड हुआ है और कहीं पे न्यूट्रलाइज हुआ. तो आपको मैंने ये स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था कि यहाँ कहीं पे इस स्ट्रेट लाइन में कहीं पे न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होगा, राइट. ये जो स्ट्रेट लाइन, इस वक्त वॉल्यूम कितना है? सो वॉल्यूम है 20 cubic centimeter. So 20 cubic centimeter is the volume of NaOH that can just neutralize all of the sulfuric acid. Then थोड़ा सा और आगे, so क्या कहते हैं, then use an answer to B to calculate the concentration. Okay, concentration they want us to find out. कोई मसला नहीं है concentration find out करना, कोई मसले की बात नहीं है. यूज योर आंसर टू बी टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द NaOH. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन उनको चाहिए. तो आप क्वेश्चन नहीं होता कि सर कॉन्सेंट्रेशन तो हमें पता थी. तो देखिए वो कॉन्सेंट्रेशन हमें पता थी जिसमें हमने ऐड करना शुरू किया ड्रॉप बाय, जो इनिशियली क्वेश्चन. वो कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता जो न्यूट्रलाइज होने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो अगर आप फिगरेटिवली सोचें तो वी कैन हैव अ सेटअप लाइक दिस. यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, ठीक है, और हमने ब्यूरेट के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH ऐड किया. तो अब आपसे पूछा कि ये बताओ इसके अंदर जब एंड पॉइंट आ गया है तो फिर क्या कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना. तो हाउ डू वी डू दैट? दैट वुड बी अ क्वेश्चन. एनी सजेशंस? नो. ओके, चलें, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन देन. इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया हुआ? उसने हमें क्वेश्चन में दो चीजें दी हुई हैं. उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहली चीज तो आपको यू कैन सी वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, तो लिख लेते हैं. H2SO4 है हमारे पास, उसका वॉल्यूम है हमारे पास विच इज 25 क्यूबिक सेंटीमीटर. फॉरन से पहले इसको डिवाइडेड बाई 1000 करते हैं सो दैट हमें आंसर मिल जाए लीटर्स में. ठीक है, ये हमें लीटर्स में मिल जाए. साथ में हमें कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है दैट इज 0.0500 मोल्स पर लीटर.
और दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि मैंने कन्वर्ट किया, क्योंकि आई सॉ क्यूबिक डेसीमीटर हियर एंड आई सॉ cubic centimeters here. So this was kind of a mismatch. So I converted this into cubic decimeter. You can learn this formula. Whenever you convert from cubic centimeter to cubic decimeter, we have to divide this with thousand. ठीक है, ओके, डन हो गया. अब आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स दैट सी टाइम्स वी. अभी थोड़ी देर पहले हमने ये फॉर्मूला लिखा था, अगर आपने मिस किया तो आपके लिए दोबारा लिख दिया गया है. 0.0500 टाइम्स 0.025. क्या आंसर आया? मैंने कहा था कैलकुलेटर लेके बैठे. तो द आंसर कम्स आउट टू बी 1.25 एक्सपोनेंट माइनस 3. मैंने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है. हो सकता है आपका कैलकुलेटर दिखा रहा हो आपको 0.00125. इट्स द सेम थिंग, डोंट वरी अबाउट इट. कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ये मोल्स हैं, तो मोल्स लिख देते हैं जिसने मुझे मैसेज किया. ठीक है, इज दिस अंडरस्टूड? अब ये क्या है? दिस इज व्हाट वी हैव अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड. इसके मोल्स हैं. सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स हैं हमारे पास 1.25 एक्सपोनेंट माइनस. इफ यू सी द क्वेश्चन गिवन, they say for every 1 mole of sulfuric acid we are going to use 2 moles of sodium ion. तो कहानी बड़ी सिंपल हो गई. if this is basically x, okay, so 1.25 exponent minus 3, and then it is x, this is 1 and that's 2, right? So what is this? This is sulfuric acid, and what is this? This is NaOH. This is from the equation. That's the x we are working for. So अगर cross multiply कर दें, so we are going to have NaOH के moles. So that's 2 into 1.25 exponent minus 3 equals to x times 1, which is x. So that's going to be 2.50 exponent minus 3 as moles of sodium hydroxide. ये आ गया हमारे पास moles of NaOH, which comes out to be 2.50 exponent minus. ठीक है भाई, मोल्स आ गए. अच्छा, अब जब ये मोल्स आ चुके हैं आपके पास, तो अब आपको कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है. हाउ डू वी डू दैट? So since formula was number of moles concentration times volume, right? So concentration should be equals to number of moles divided by volume, right? So we have number of moles, which is 2.5 exponent minus 3. Let's write it here, 2.50 exponent minus 3 divided by what was the volume of NaOH added. तो उसका बताएंगे जल्दी से कि कितना था वॉल्यूम? तो जो न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम था वो था अराउंड 20, राइट? उसको डिवाइड कर दें 20 से, यू आर गोइंग टू गेट 1.25 एक्सपोनेंट माइनस 4 लीटर्स, सॉरी मोल्स पर लीटर. बल्कि सॉरी, मोल्स पर लीटर नहीं होगा. अगर आप उसको डिवाइड करेंगे 20 से तो ये हो जाएगा मोल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर. तो आपको डिवाइड करना चाहिए 20 एक्सपोनेंट माइनस, which is 0.125. Yes. So 20 exponent minus 4. So this is going to be 0.125. So like that. क्योंकि हमें लीटर में कन्वर्ट करना होगा. पॉइंट. इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीवन? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? मुझे किसी का मैसेज नहीं आया, तो इसका क्या मतलब है? यू गाइस आर राइटिंग, नॉट राइटिंग, डूइंग, नॉट डूइंग, क्या? बेटा ये समझ में आती है बात. आई नो इट्स काइंड ऑफ टू मच मैथ्स. आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन एम्पथाइज. जहाँ पे आपका दिल चाहे मुझे रोके, कोई मसला नहीं है. लेकिन आपको समझ में आती है या नहीं आती है? ईयर जरूर लिख लीजिएगा आप अपने पास.
मुसब जो सामने ना, चल अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आई थिंक थोड़ा सा आप रीड कर लें 1-2 मिनट, देन फिर मैं आंसर बताता हूँ इसका, समझाता हूँ इसको। So we are doing this question now. Question talks about adding drop by drop. उन्होंने HCl ऐड किया है ब्यूरेट से, बेरियम हाइड्रोक्साइड was the alkali they are having. So that was the effect they observed. तो मजेदार बात ये है कि pH of this solution changed from 13 to 0.9 and neutral point was obtained at 7 when HCl का volume था 20. So question is explain in terms of the ions present why the pH of the solution in the beaker changes from 13 to 0.9. तो आयन के हिसाब से बात करेंगे। इनिशियली अगर हम पीएच एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 13 थी, तो इनिशियली मोर हाइड्रोक्साइड आइंस वर प्रेजेंट, राइट, विच वर देन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल उल्टा था, विच वर देन न्यूट्रलाइज्ड बाय H positive ions from HCl, right? Is this understood? तो अगर हम थोड़ा सा और कमेंट करना चाहते हैं, ये भी लिख सकते हैं एट द एंड, more H positive ions are present than hydroxide ions. Is this understood to everyone? Any doubts, any questions? Good. नेक्स्ट आ जाते हैं। You'll get this the screenshot जो मैंने पेपर पे लिखा है, तो डोंट वरी अबाउट कि आपने अगर कोई मिस कर दिया लिखने में, तो वो सही है। अच्छा, ये जो मेरे दूसरे बच्चे हैं, उन्होंने तो ये क्वेश्चन फेस किया था अपने एग्जाम्स में, जिनको स्कूल में मैं मिला था, तो उन्होंने पढ़ा हुआ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एसिड इन वीक एसिड, राइट, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म वीक एंड वीक एसिड। बाकी मैंने आई थिंक क्लासेस के दौरान भी कोचिंग में ये करवा दिया था, राइट। तो आई थिंक वी कैन skip question 3, right? Let's do question 4. So it says Yes, sir, we are new students, so can you do it fast? okay, okay, okay. We can do it now. No worries in that. So the question was, what is the meaning of the term acid and weak acid? So the question was, what is the meaning of the question is a bit tricky question. What usually students they say, they understand the question is about weak acid. No, they're only saying what is the meaning of the term acid and weak acid. So acid is any species that forms H positive ions इन एक्वस सोल्यूशन। पूरी बात हमें कंप्लीट तमीज से करनी है, सिर्फ पहेली नहीं बुझानी है। यू डोंट राइट टू गो टू गेसेस, यू जस्ट डोंट राइट एच पॉजिटिव आयन लिख दिया किसी बच्चे ने कुछ लिख दिया, पूरी बात लिखनी है एनी स्पीशी दैट गिव्स, सॉरी, दैट गिव्स एच पॉजिटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन। और एक दूसरी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं जो सीआई एक्सेप्ट करता है, दैट्स एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। तो जो बच्चा जिसने पढ़ी भी है जो भी डेफिनेशन, वो आप लिख सकते हैं, आई लाइक मोर दिस इज मोर ऑथेंटिक, दिस इज मोर मतलब रीसेंट, नॉट ऑथेंटिक, मोर रीसेंट, ठीक है, तो ये चल गया, आप वो भी लिख सकते हैं। फिर प्रोटॉन डोनर्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म वीक इन वीक एसिड। so now they are not focusing on acid, they're saying weak का मतलब है। so now what is a weak acid? so weak is an acid that
partially ionizes, that doesn't ionize completely, partially ionizes, ठीक है, in aqueous solution. जो completely ionized नहीं होता, dissociate नहीं होता, जो कम होता है, ठीक है, तो you can write partially ionizes or partially dissociates. अगर ये मुश्किल लगता है तो you can write any substance, ठीक है, that produce less number of H positive ions in aqueous solution. So it's like more relevant to first definition. Quantity में कम होने चाहिए. So simple math says अगर HCl compare कर लें हम aqueous solution में, so HCl के 99% atoms they dissociate or molecules they dissociate. So they're more likely present in this form. Only 1% exists as an acid. But अगर हम for example select कर लें CH3COOH, that's a weak acid. अब इसको पानी में डाल दें, तो CH3COOH dissociates like this, ठीक है, H पॉजिटिव ये भी बनाता है, बट ये बनाएगा 1% या 4% तक एट मैक्स. बाकी 96% से लेकर 98% तक, 99% तक ओरिजिनल एसिड इज मेंटेन, यही रहता है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड. ठीक है, एक बच्चे ने, आई स्टिल रिमेंबर दैट स्टूडेंट, उसने लिखा था acid, a strong acid is going to burn our hands. Who is going to put his or her hand in the stone? तो ये हरकतें नहीं करनी होती. Okay, I hope this is understood by everyone. So part C says describe how universal indicator can be used to find the pH of the dilute propanoic acid. Okay, that's very simple. So the process here is a universal indicator is a tool that gives us pH. So how do we use it? So we use it, we dip it in a solution, and then we observe the color change, and then we compare it with the standard colors we have. जैसे अगर रेड कलर होगा तो क्या होता, क्या इंडिकेशन होता था वैसे, किसी को याद है? ब्लू कलर होगा तो क्या इंडिकेशन होगा वैसे? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, रेड एंड ब्लू को. ठीक है, तो अब हम क्या इसमें लिखेंगे? तो हम लिखेंगे मैच द कलर ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर with the pH chart. You have a large scale use of calcium hydroxide that depends on its basic character. So only one term जिसे आप देख सकते हैं, liming. Liming is done by farmers when their soil it turns acidic. ठीक है, तो होता यह है कि जब वो बार बार अपने जो फील्ड्स हैं उनके ऊपर फर्टिलाइजर्स ऐड करते रहते हैं, तो फर्टिलाइजर्स के अंदर जो नाइट्रोजन बेस्ड और पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनके अंदर से जो इंग्रेडिएंट्स उनके सॉइल में रह जाते हैं, दे टर्न सॉइल एसिडिक. तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जब वो न्यू सीड्स प्लांट करते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं. So then farmers they use calcium hydroxide in powdered form. Okay, calcium hydroxide in powdered form, and then they spray it on the fields. So that which neutralizes the acidic behavior. So that's one of the uses. Obviously, there can be many uses. एक और भी हमने पढ़ा था, शायद याद आ जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नहीं, नहीं याद आ रहा. छोड़ने नहीं याद आ रहा तो क्या कर सकते. Let's not get too much chemical here. Question number 4. What does it say? It says dilute ethanoic acid reacts with all carbonates and with some metals. Okay. Name one metal that will react with dilute ethanoic acid and name the product of this reaction. Name of the metal product. क्या कहते हैं वो? So dilute ethanoic acid reacts with all carbonates and with some metals. ठीक है, okay. Name one metal that will react with dilute ethanoic acid and name the product. तो एक मेटल बता दें कोई भी, तो हम सोडियम उठा लेते हैं. ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो अब अगर हम थोड़ा सा रिएक्शन सोच लें, तो इथेनॉइक एसिड का भी जाहिर है इट्स टू अर्ली टू जज यू गाइस ऑन इथेनॉइक एसिड का फार्मूला. तो मैं आपको फार्मूला दे देता हूँ इथेनॉइक एसिड का, CH3COOH. दैट्स द फार्मूला फॉर इथेनॉइक एसिड. आपको एग्जाम में दिया हुआ नहीं होगा बिकॉज दिस इज एन ऑर्गेनिक एसिड, और ऑर्गेनिक में हम अभी पढ़ना इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे, तो हम नाम से ना फिर उसका स्ट्रक्चर ट्रेस करेंगे.
ये होगी मजे की बात। तो इथेनॉइक एसिड ये होता था। अब आप मुझे बताएं इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप? सोडियम, अच्छा सॉरी, प्रोडक्ट्स लिखने हैं आपको, सिर्फ प्रोडक्ट्स। सो सोडियम रिएक्ट्स विद इथेनॉइक एसिड, तो क्या बनेगा बताएं? सो दैट्स अ मेटल एंड दैट्स एन एसिड, तो क्या बनेगा बताएं? तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले तो बताते हैं वाटर, राइट? ऐसे ही होता था, या हाइड्रोजन बनाएंगे आप। तो जनरली क्या होता था? मेटल प्लस एसिड, तो क्या होता था? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, राइट? तो वीक एसिड्स के लिए वाटर भी चलता है, आप हाइड्रोजन पे लिख सकते हैं। सॉल्ट क्या बनाएंगे आप? सॉल्ट में ये कैटाइन होगा, तो यहाँ से आपको एनाइन उठाना पड़ेगा, सो दैट इज द एनाइन। तो यू कैन राइट CH3COONN, जिसका नाम होता है सोडियम इथानोएट, अ सॉल्ट। सो दीज कैन बी दी प्रोडक्ट्स। COO देख के आप CO2 भी एज अ प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। दे आर ऑल एक्सेप्टेड प्रोडक्ट्स। इज दिस अंडरस्टूड? तो 2 मार्क्स के लिए आप कोई दो भी लिख देते चल रहा है। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? No, none. Okay, let's move on. What else? What else we have? So question number 5 says acids are neutralized by alkalis. Write the ionic reaction equation for the reaction between an acid and an alkali. So whenever they say an ionic equation, what they want us to know is कि हम उनको ये दिखा दें, H positive aqueous, hydroxide negative aqueous, and they produce salt. Oh, sorry, water or liquid. That's it. तो अगर वो आयोनिक इक्वेशन नहीं कहते तो यू कैन इजीली सेलेक्ट एनी इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशंस डन इन क्लास, तो काम हो जाता आपका। now what does this say in question 6? What is meant by the term strong acid? So a substance that dissociates or ionizes completely in aqueous solution. That's what it is meant by strong acid. इसलिए how could you measure the pH of the dilute sulfuric acid? चलें बताएं कैसे मेजर करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा मेथड यूज कर लेते हैं, ऐड यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर एंड मैच द कलर द पीएच चार्ट। इससे ज्यादा आसान कुछ है? बिल्कुल है। सिंपल टर्म्स में मैं लिखता हूँ, और यूज पीएच मीटर, उसकी जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो डिप करते हैं, वो खुद ही रीड करके बता देता है। ठीक है। Many plants cannot grow in soils which are too acidic. Describe how soils which are too acidic can be treated to reduce the acidity. This is what you had just done. ऐड कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कोई भी दुनिया का बेस डाल दें। सो ऐड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट डाल दें, कुछ भी डाल दें, बेसिक होना चाहिए बस वो, टू रिड्यूस द एसिडिटी। ठीक है। अब ये क्यों 2 नंबर दे रहा है आपको, तो आप एक और नाम भी लिखेंगे, एक और चीज भी लिखेंगे, एज इट रिएक्ट्स विद H पॉजिटिव। दो चीजें। डन? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? नो, नो क्वेश्चंस, नो। अच्छी बात है। So we have 8 students. So everyone is understanding everything. Alishba, are you here with us? Arman, are you here with us? This is Ilian. Ilian or Ilian? Ilian. I don't know. Yin. Ilian. Okay. Are you understanding? Yes. And then we have Mehak, Mufaddal. I hope anyone is awake. Musab. Musab is Musab is not writing anything in the chat box. Usually he floods my chat box. मुस्तफ़ा सादिक क्या कहते हैं?
यार मियाँ आप क्या कहती हैं? यू गाइस लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, जाग रहे हैं, सो रहे हैं? या आई गॉट रिस्पॉन्सेज, जबरदस्त, दैट्स नाइस, गुड जॉब, नाइस, गुड, अच्छी बात है। तो इसका मतलब है फायदा हो रहा है, राइट? है ना? गुड, दैट्स नाइस। चलो, अच्छा है, आगे चलते हैं। सो कुछ नया करते हैं वाली सर इक्वेशन। ये जो हमने क्वेश्चंस आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या इसकी स्क्रीनशॉट्स भेजेंगे ग्रुप पे? आप मेरे पास ग्रुप में एडेड है? हाँ आप मेरे पास कौन से ग्रुप में एडेड है? सर, एक मिनट में चेक करके नाम बताती यूजर वाले ग्रुप में एडेड है? हूँ। जी, यूजर वाला। बस सही, उसमें आपको मिल जाएंगी सारी चीजें, उसमें ये रिकॉर्डिंग का लिंक भी मिल जाएगा आपको जो हमने बातें की हैं, और उसमें ये सारे स्क्रीनशॉट भी मिल जाएंगे, ठीक है? डोंट वरी, ओके ओके बिकॉज हम अगर क्लास के बीच में लिखना आपको अलाउ करेंगे ना, तो उसमें ये होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट विल बी राइटिंग। अभी हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पास से करें, तो बेटर इसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जाना था। सो क्वेश्चन नंबर 7, चलो। So what is the low melting point and is neutral? Okay. A pH meter can be used to confirm that water is neutral. Describe another when it's a student can confirm that water is neutral. उसने कहा pH मीटर के अलावा बता दो, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला बता दो, ठीक है? कि ये कर लो। अगर हम वो नहीं करना चाहते इसके साथ, तो हम ये कर लेते हैं कि एक और शो ऑफ भी तो करते हैं हम। तो हम लिखते हैं एडिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, ठीक है? इसको अच्छा करते हैं, मजे का करते हैं, ये तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। एंड observe it till it turns till it turns green completely। तो ग्रीन का मतलब होता है डिसेंट है, ग्रो, यू नो, वो गो अहेड सिग्नल है, टच कर सकते हैं, पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। तो रेड का मतलब है डेंजरस, ब्लू का मतलब है स्ट्रॉन्ग एल्कली। Hydrogen fluoride has a simple molecular structure. It is soluble in water. So just one other physical property of hydrogen fluoride. सो एच एफ की बात कर रहे हैं, ठीक है? और एच एफ की बात क्यों कर रहे हैं, मतलब दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए कर रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में वो दो ट्रेंड्स आपको पढ़ाता है, आपसे पूछता है, एक पूछता है ग्रुप 1 का ट्रेंड, और एक पूछता है आपसे ग्रुप 7 का ट्रेंड। दोनों का ट्रेंड पूछता है आपसे। ग्रुप 1 में क्या क्या आता है? सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ग्रुप 7 में आते हैं आपके हेलोजन भाई, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सारे आते हैं, ठीक है? ये सबके बारे में पूछता है। तो अब ये याद कराने का मकसद ये है कि भाई वो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, ठीक है? कि क्या होता है डाउन द ग्रुप, क्या होता है डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रिएक्टिव साइज पे क्या फर्क पड़ता है, रिएक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रॉपर्टीज चेंज होती है। तो उसने आपको खुद दो चीजें बताई हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड का सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, सॉल्युबल इन वाटर, दो बातें बताई हैं आपको। सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दुनिया में जिस भी चीज का होता है ना, ये हमेशा याद रखना, उसका हमेशा हमेशा, जिस भी चीज का जो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, उसका हमेशा हमेशा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड तो रूम टेम्परेचर में गैस होती है, समझ आया? तो आप लिख सकते हो, आप मतलब जनरली लिख सकते हो, दुनिया में कोई एक ऐसी चीज आ गई जो आपने पहली दफा सुनी है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उन्होंने लिखा हुआ है सिंपल। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पक्का पक्का है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का जो है वो होगा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। तो एक सिंपल प्रॉपर्टी हमने लर्न की, लो मेल्टिंग पॉइंट लिख दो, ये लिख दो, या ये लिख दो लो बॉइलिंग पॉइंट। तो लो एल एम पी और लो बी भी। अच्छा, देन और क्या लिखना चाहें? अगर आपको ये याद ना होता तो आप क्या लिखते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी पूछे ना, एच एफ है, आप लिख देते इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, आप लिख देते पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? ये भी चल जाता। लेकिन वो बहुत ही मतलब एग्जामिनर जो है ना, मतलब उसको मजा नहीं आता। मैं ऐसे ही होता, बस मजा नहीं आता, वो फील नहीं आती वो केमिस्ट्री वाली। बाकी सब सही था। हाइड्रोजन फ्लोराइड डिसोसिएट्स इन पानी टू फॉर्म डाइल्यूट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। राइट एन इक्वेशन टू शो डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब ये तो आप कर सकते हो। डिसोसिएशन कैसे करेंगे? एच एफ डिसोसिएट कर दो,
डिसोसिएशन में अच्छी बात है कि रिवर्सिबल एरोज बनाए, नहीं भी बनाए तो भी चलेगा। तो H पॉजिटिव F नेगेटिव। स्टेट सिंबल्स लिखना चाहते हैं लिख लें। ये होगा लिक्विड, ये होगा एक्वस, ये होगा एक्वस। थोड़ा सा और शो ऑफ कर दें, लिख दें पानी यहाँ पे H2O। एक्सप्लेन व्हाई एन एसिडिक सॉल्यूशन इज फॉर्म इन हाइड्रोजन क्लोराइड डिसोसिएशन। वाह, क्या घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ही बात बार बार पूछ रहा है। तो प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आइंस इन पानी, in aqueous solution. I was about to write pani. Done, scene is on. तो क्या कहता है क्लब? कौन चला गया क्लास से? क्लास से? ओहो, अब चला गया। चलो अभी मैसेज करता हूँ। Right, anyways, so is this understood? Any doubts, any questions? No questions, no doubts. Good. Let's move on. ये तो अभी हमने किया है ना। The atmosphere contains a large number of gases, including oxygen, nitrogen, carbon dioxide, sulfur, oxides of nitrogen, methane, and chlorofluorocarbon. Okay. यूनिवर्सल इंडिकेटर, मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को कहते हैं। जो टाइट्रेशन में इंडिकेटर्स होते हैं वो लिक्विड इंडिकेटर्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। उसमें फिनोक्टेलीन हो सकता है, मीथाइल ऑरेंज हो सकता है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। अच्छा, नाइट्रोजन अब जाग है मेरा बच्चा, है पहले कब से सो रहा था, अभी आंख खुली है इसकी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ एसिड रेन। ओके, 2 moles of nitrogen dioxide react with 1 mole of pani, okay, to make an aqueous solution of two acids only. One of these acids is the nitric acid. Reduce the formula of the other acid. अब ये कैसे करोगे? That would be a question. ये कैसे करोगे? उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने आपको सब कुछ बता दिया। उन्होंने बताया आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ एसिड रेन। 2 moles of nitrogen dioxide react with 1 mole of water to make an aqueous solution of two acids. ठीक है, तो एक एसिड तो उन्होंने बता दिया, नाइट्रिक एसिड। ये तो सभी कर लेंगे, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन दूसरी चीज उन्होंने क्या बताई है आपसे? दूसरी चीज उन्होंने आपसे पूछी है कि भाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसेंशियली उन्होंने जो है वो आपके लिए ऐड किया है। तो अब आप इसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे? ये कैसे बताओगे आप कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है? नाइट्रोजन जो है वो किस तरह से बनाएंगे हम? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बेटा सिंपल होता है, NO2। क्या होता है? NO2 होता है। ठीक है, अब उन्होंने किसके साथ रिएक्ट किया? इसको वाटर के साथ रिएक्ट किया। उसके बाद उन्होंने क्या कंडीशन दी? 2 moles of nitrogen dioxide. So let's put 2 here. Reacts with 1 mole of pani. So let's put nothing here. That's 1, right? Just we have to balance this up. तो बैलेंसिंग इस तरह से नहीं करेंगे कि कोएफिशिएंट ऐड कर दें। दे वांट अस टू नो द अदर एसिड। तो दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन आ गया। देन वी हैव 4 ऑक्सीजन एंड 5 ऑक्सीजन। तो टोटल 5 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन, राइट। और दूसरी चीज हमें ये बात पता है कि एसिड है क्या। तो अगर एसिड है तो एच तो होगा ना उसमें। अब दूसरा क्या होगा? नाइट्रोजन भी होगा, तो 1 नाइट्रोजन हियर। और कितने ऑक्सीजन है हमारे पास? 5 एंड so 3 यहाँ पे, so let's put 2 here. Do you guys get this? So that is the formula of the unknown acid. The total number of hydrogen, nitrogen or oxygen left hand side or right hand side पे balance है. Done? Good. Any questions? Any doubts? Hmm. तो कहते हैं फिर वही देखो, H2S की बात करें, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, one physical property of hydrogen sulfide. So exactly similar to what we just did. Low melting point, boiling point, does not conduct electricity, anything from that. Aqueous hydrogen sulfide is a weak acid, right? Write an equation to show the dissociation of aqueous hydrogen sulfide. That's what we can do. H2S dissociate कैसे होगा? 2H positive and S
नेगेटिव -2। अब देखो इसमें जो चीज जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि H2S लिखा हुआ उसने दिया आपको, राइट? देन यू हैव टू यूज पीरियोडिक टेबल एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इनमें से जो रिएजेंट्स हैं हाइड्रोजन और सल्फर वो किस ग्रुप के हैं। तो हाइड्रोजन तो किसी ग्रुप में नहीं होता, सल्फर होता है ग्रुप 6 में, तो ग्रुप 6 के चार्ज होते हैं सारे माइनस, राइट? तो अब आपको पता है कि अगर इसका चार्ज माइनस है तो इसका चार्ज प्लस होना चाहिए। देन अगर इसका चार्ज +2 होता तो ये सिर्फ HS लिखा हुआ होता, तो इसको होना चाहिए H2S, राइट? H। तो इसमें से 2H पॉजिटिव और S-2 हमने जनरेट क्यों किया? क्योंकि ये ग्रुप 6 का मेंबर है, और ये जाहिर है फिर अगर इसके साथ 1 लिखा हुआ है तो ये हाइड्रोजन का चार्ज होगा। ठीक है, इज दिस अंडरस्टूड? डोंट एवर थिंक टू राइट H+2, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। Why is aqueous hydrogen sulfide described as a weak acid? So it produces less number of hydrogen ions in aqueous solution. या आप लिख सकते हो it dissociates partially. ठीक है, is this understood? चलिए फिर एंड करते हैं इसे। See you guys inshallah on Wednesday 4:30. Done. Take care. Allah Hafiz.